Hello students, this is Ritu Kaushik and I welcome you all on my YouTube channel. And today we will take quick revision of chapter The Address written by Marga Minko. Okay, this chapter is telling a story of Second World War. Okay, the narrator who is telling us the story, she set the story during the Second World War. Second World War के दौरान उन्होंने स्टोरी को बनाया है, बताया है हमें. That time Hitler wanted to kill all the Jews. Okay, वो सभी Jews को मार देना चाहता था in the country Germany and Holland and other countries also. So this story is actually telling us the human predicament, how war affects the life of common people. Okay, so first of all let's talk about the important characters. Important character, the first one is narrator herself. Okay, the narrator who is telling us the story, she was very emotional, intelligent and devoted daughter. Why? Because she was in great love with her mother. Her mother gave all the belongings to a lady who is Mrs. Dolling. Okay, three main characters are there. One is narrator, second one is her mother Mrs. S, and the third one is Mrs. Dolling. Okay, during the war it was like they were afraid कि कभी भी वॉर में वो मारे जा सकते हैं. This thing was known to Dolling. Dolling को पता था कि वो Jews हैं and they were not safe at that place. That's why she convinced Mrs. S that you give all your belongings to me and I will keep all your things safe at my home. Okay, then she took all the precious things from Mrs. Dolling. Okay, now after the war, narrator came to Mrs. Dolling to take all the belongings which were the things of her mother. But now Dolling, she refused to recognize the narrator. Okay, so narrator, she was very emotional. She was so much attached to her mother because after her death she came to the place to take the belongings. Okay, she was so much attached to these things because these things were the, you can say, token which reminds her about her mother. So she was very emotional, intelligent. She was very practical. When she went to the address of Mrs. Dolling and Mrs. Dolling refused to recognize her, then she decided, she took a resolve that she will forget that address because all the things which were related with her mother, all the things were in the bad condition. They were arranged tastelessly at the home of Mrs. Dolling. तब उन्हें लग रहा था कि वो चीज़ें एक नए एनवायरनमेंट में हैं. अब उनकी वो इम्पोर्टेंस नरेटर को लग रहा था उनकी लाइफ में नहीं रही है, इसलिए उन्होंने लास्ट में ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो दोबारा इस प्लेस पर नहीं आएंगी और ना ही अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ से जाएंगी. ओके, सो शी वॉज़ वेरी प्रैक्टिकल. उन्हें पता था कि इस बात का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो बार बार वहाँ आएँ, क्योंकि वो लेडी उन्हें उनकी मदर का कोई भी सामान वापस करने वाली नहीं है, because she was very selfish lady. So let's come to the Dolling, Mrs. Dolling. She was old acquaintance of Mrs. S. She was greedy, callous, took advantage of war and she was selfish. She was old acquaintance of Mrs. S. वो अचानक से उन्हें मिली और उसने कहा कि हाँ हम आप पुराने जानकार हैं, नोन हैं, तो वो उनके घर पे आना शुरू कर देती हैं. एंड शी वॉज़ वेरी ग्रीडी. उनके सामान को देखकर वो लालच उनके मन में आ जाता है. एंड देन शी वॉज कैलुअस. कैलुअस कैसे थी? व्हेन नरेटर केम टू हर टू टेक द थिंग्स, द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, शी जस्ट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर. उसने मना कर दिया कि वो उसे जानती ही नहीं. ओके, टूक एडवांटेज ऑफ वॉर. कैसे उसने इस वॉर का फ़ायदा उठाया? शी केम अगैन एंड अगैन टू द house of narrator and convinced her mother that your things, your belongings, your precious things are not safe in this war. Okay, you might have to leave the place. Then you can keep these things at my home and I will take care of these things and after war you can take these things back to you. Okay, तुम दोबारा उन चीज़ों को मेरे से लेके जा सकती हो. ऐसे कन्विंस कर लिया and she took all the precious things at her home. Then she is selfish. Selfish इतनी थी कि जब
नरेटर आती हैं इनके पास अपनी मदर का सामान लेने, तो पहचानने से ही मना कर देती है और उनको अंदर एंटर तक नहीं करने देती। सी वो उनकी फ्रेंड की बेटी हैं और इतनी सेल्फिश हैं उन चीज़ों के लिए कि इतने साल बाद, वॉर के बाद वो आई हैं। इवन वो कह रही थी, इन्होंने कहा दैट आई थॉट नो वन विल कम, कि कोई भी नहीं आएगा, मैं तो ये सोच रही थी। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद वॉर में वो सब मर जाएंगे और नो वन विल कम बैक टू टेक ऑल द थिंग्स। ओके, then Mrs. S, she was narrator's mother and she was very kind hearted lady, okay, and sympathetic, and she became the victim of war. काइंड हार्टेड थी, कितनी जल्दी उनकी बातों में आ गई मिसिस डोलिंग की, एंड शी एग्रीड टू गिव ऑल द प्रीशियस थिंग्स टू हर। कितनी जल्दी उन्होंने ट्रस्ट कर लिया उस लेडी के ऊपर। एंड व्हेन एक्चुअली ड्यूरिंग द वॉर टाइम नरेटर वॉज नॉट एट द होम, वो कहीं बाहर रहती थी, और जब वो घर पे आई कुछ टाइम बाद, देन शी नोटिस्ड दैट अ फ्यू थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम हर रूम। उसने अपनी मदर से पूछा कि ये चीज़ें क्यों मिस हैं। देन हर मदर टोल्ड कि वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड है मिसिस डोलिंग, उन्हें वो सामान दे रही हैं ताकि वो अपने घर पर उसे सुरक्षित रख सकें। देन नरेटर आस्क्ड हर मदर, आर यू श्योर दैट शी विल रिटर्न द थिंग्स? एट दैट टाइम शी रिब्यूक्ड हर ओन डॉटर फॉर दैट लेडी। उन्होंने अपनी बेटी को ही डांटा कि तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, शी इज़ टेकिंग सो मच रिस्क। वो कितना रिस्क लेकर यहाँ से सामान, वॉर का टाइम है, कितनी मुश्किल से लेकर जा रही हैं सामान यहाँ से। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अभी स्टार्टिंग है वॉर की, लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग की बातें ये चल रही हैं, और वॉर में वो मारी भी गई हैं यहाँ से वहाँ से जाने के लिए। जैसे भी इट नॉट हैज़ बीन मैंशन इन द चैप्टर दैट हाउ शी वॉज dead, but she became the victim of war. Then importance of address. This address number 46 Marconi Street, the whole chapter is revolving around the address. It is starting with the address. Okay, narrator is searching the address. Okay, when she went to that address, the lady refused to recognize narrator. Okay, and in the middle of the chapter you will see that how her mother is telling about that address, and she is telling her daughter, mother is telling about the address to her daughter, and she is telling that don't forget this address because you have to take all these precious things back from that address. So address बहुत important है क्योंकि पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर बेस्ड है। स्टार्टिंग भी चैप्टर की एड्रेस से ही हो रही है, मिडिल में भी यही सब कुछ है कि कैसे उसको एड्रेस का पता चला, मदर ने कैसे एड्रेस बताया। ओके, और एंड जो है, एंड भी यही है कि वो वहाँ से उस एड्रेस को भूलने की अब कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दिस ऑल थिंग्स हैज़ जस्ट स्ट्रेंज फॉर हर, दे हैव लॉस्ट देयर मीनिंग फॉर हर बिकॉज दीज थिंग्स आर इन द स्ट्रेंज एनवायरमेंट एंड दे आर केप्ट सो टेस्टलेसली एट द होम ऑफ मिसिस डोलिंग। तो अब उनके लिए वो एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं रहा, वो उन्हें भूलना चाहती हैं। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, उन्हें लगा कि इन चीज़ों से अब यादों से जुड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट दीज थिंग्स बैक फ्रॉम मिसिस डोलिंग। Then title justification, yes, this is the same answer for the title justification also. The whole story is revolving around the address that is number 46 Marconi Street. Okay, so in the starting of the chapter you can see that she is searching for the address, and when she went there, that lady refused to recognize her. उन्हें पहचानने से मना कर देती है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हैं और अपने आप को छुपाना चाहती हैं। ओके, वो पहचान तो लेती हैं लेकिन जानबूझकर वो शो कर रही हैं कि उन्होंने नरेटर को पहचाना नहीं। लेकिन पहले तो नरेटर को भी लगता है कि वो गलत एड्रेस पे आ गई हैं, उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत बेल रिंग कर दी है, शायद वो एड्रेस भूल गई हैं। लेकिन व्हेन शी सॉ द ग्रीन कार्डिगन ऑफ हर मदर, उस लेडी ने उनकी मदर का ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ था जिसके वुडन के बटन्स थे, देन शी रिकॉग्नाइज्ड एंड शी बिकेम श्योर दैट शी केम टू द राइट एड्रेस। ओके, then in the middle her mother told her about the address, that she has to go there and she has to bring all the things back from that address. Then in the end you can see that she resolved that she will forget that address. So the whole chapter is revolving around that address, that is number 46 Marconi Street. Now what is the theme of the story? The theme of the story is, it is story of human predicament. एक मानव इंसान की पीड़ा, एग्नी को दिखाया गया है कि वॉर में एक कॉमन मैन को कितनी तकलीफ होती है,
how many hardships they have to face. Like due to war they have to face physical difficulties. ओके वो तो थी ही, उनका घर चला गया, उन्हें कितना वहाँ से जाना पड़ा, एवरीथिंग दे हैव टू गिव टू एन लेडी दैट इज़ मिसिस डोलिंग. ओके एंड इमोशनल जो सफरिंग है वो भी उन्हें सहन करनी पड़ी हैं. उनकी इतनी चीज़ें जिनके साथ वो इमोशनली जुड़े हुए थे वो उनसे दूर हो गई. ओके और बहुत जो इम्पॉर्टेंट थी वो नरेटर हैज़ लॉस्ट हर मदर. उनकी मदर को वो खो चुकी थी. अब उनकी मदर उनके साथ नहीं थी इस वॉर में, उनकी मदर उनसे अलग हो गई थी. ओके so this was the theme. And one more theme is we should try to move on. Okay, we should not glue to the old memories, to the past. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें, पास्ट को छोड़कर हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए. then other important aspects are this expression has been used, still life over the tea table. जो नरेटर हैं वो जब वहाँ पे जाती हैं तो देखती हैं कि टेबल जो है, टेबल क्लॉथ जो है, ओके वहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, तो वो किस किस सामान की बात कर रही हैं. टेबल क्लॉथ है, टी पॉट है, कप्स हैं, स्पून्स हैं, एंटीक बॉक्स है, तो उन सभी को वो स्टिल लाइफ बता रही हैं. और टेबल क्लॉथ को तो वो टच करके लाइक शी वॉज सर्चिंग कि देयर मस्ट बी सम बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, क्योंकि उनको अपने टेबल क्लॉथ की पहचान थी कि उसके ऊपर एक जला हुआ मार्क है और वो उन्हें मिल जाता है. देन वंस हर मदर told her to help her in painting the silver cutlery, because before that narrator was not aware. उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर पर सिल्वर की कटलरी भी है. तो जब उनकी मदर उन्हें कहती हैं कि वो उनकी हेल्प करें कटलरी, सिल्वर कटलरी को पेंट करने में, then she came to know that they have सिल्वर कटलरी. उनके जो स्पून्स, नाइफ्स, फोक्स जो भी हैं वो सभी सिल्वर के हैं. और वो सभी कौन ले गया है? मिसिस डोलिंग अपने घर ले गई है, ये कहकर कि शी विल कीप दिस थिंग्स सेफ एंड आफ्टर वॉर शी विल रिटर्न द थिंग्स. सो इन दिस चैप्टर यू विल सी, चैप्टर जो है कभी प्रेजेंट में चल रहा है, कभी पास्ट में चल रहा है. ओके प्री वॉर, पोस्ट वॉर, दो एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं. वॉर से स्टार्टिंग का जो टाइम था उसमें क्या था, उसमें बिल्कुल फियर था, फियर ऑफ डेथ था. दे एवरीवेयर देयर वाज ब्लैकआउट एंड दे कांट सी आउटसाइड द विंडोज़, दे कांट सी द नेचर. ओके सो मच फियर वॉज देयर. सब डरे हुए थे कि पता नहीं वो कब मर जाएं. एंड आफ्टर द वॉर एवरीथिंग वॉज काम. अब चीज़ें कुछ सुधर रही थी, दे कैन मूव फ्रीली. ओके और अब नरेटर जो हैं वो दोबारा उसी जगह आती हैं जहाँ वो पहले रहती थी, ताकि वो अपनी मदर की चीज़ों को मिसिस डोलिंग से लेके जा सकें. बट मिसिस डोलिंग रिफ्यूज़ टू गिव द थिंग्स. शी जस्ट नॉट डायरेक्टली शी जस्ट रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज हर, कि वो उन्हें पहचानती ही नहीं. तो फर्स्ट टाइम गई, दोबारा फिर जाती हैं, नेक्स्ट टाइम उन्हें डोलिंग नहीं मिलती हैं, उनकी डॉटर मिलती हैं. वो उनको अपने घर में अंदर लेके जाती हैं. एंड व्हेन शी सो एवरीथिंग इन द स्ट्रेंज एनवायरनमेंट, जब वो देखते हैं कि उनकी मदर की हर चीज़ कितनी अलग से एनवायरनमेंट में और कितनी लाइक टेस्टलेसली अरेंज किया गया है, उनकी कोई जैसे रिस्पेक्ट ही नहीं है वहाँ पर, तो उनका मन जो है वो उन चीज़ों से पीछे हट जाता है. वो सोचती हैं कि अब इन चीज़ों की उनकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. एज शी सेड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिडंट नो. वो कहती है मैं ऐसे कमरे में थी जहाँ को शायद मैं जानती थी, क्योंकि वो चीज़ें सब उनकी जानी पहचानी थी, लेकिन वो इतनी स्ट्रेंज तरह से अरेंज की गई थी, इतने अलग से एनवायरनमेंट में, इतने डर्टी से मस्टी से रूम में उनको रखा गया था कि उसे लग रहा था कि जैसे वो उन चीज़ों को जानती ही नहीं. जानते हुए भी शायद वो उन्हें नहीं जानती, क्योंकि चीज़ें तो उनकी थी, लेकिन जैसे उन्हें अरेंज किया गया था वो सब उन्हें स्ट्रेंज लग रहा था. इसलिए उनको लगा कि अब इन चीज़ों का उनकी लाइफ में कोई भी प्लेस नहीं है. एंड शी रिजोल्व टू forget these things, and she decided not to come again on that place, and she decided to forget that address. Okay, so these are the all important aspects, all important question of the chapter. We have covered characters, we have covered title justification, we have covered theme of the chapter and other important aspects of the chapter. So this is all about the chapter, but still if you have any doubt you can comment me in the comment box. So like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you.